شروع کرتا ہوں یشوع ہمشیہ کے نام میں، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شلوم، جے مسیح کی۔ دوستو، ہماری بات چل رہی تھی روزوں کے تعلق سے کہ اس کی بیس کیسے ہوئی، اور میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ مسیح سے 1400 سال پہلے شروع ہوا، اور 1400 سال پہلے یہ اس وقت روزے کا احساس ہوا جب بنی اسرائیل کی جنگ ہوئی ان کے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ، یعنی کہ بنیامینیوں کے ساتھ جنگ ہوئی۔ آپ کو پتا بنیامین کون تھا؟ یہ یوسف کا چھوٹا بھائی تھا بنیامین۔ بنیامین جب پیدا ہوا تو اس وقت راخل مر گئی، جو یعقوب کی چہیتی بیوی تھی۔ راخل کی خاطر یعقوب نے بڑے کشت کاٹے ہیں، اور یہ بنیامینی بنی اسرائیل کے ساتھ اتنے ملتے جلتے نہیں تھے، کیونکہ ان کی جو دوسرے لوگ تھے یا دوسری بیویوں کے بچے تھے، یعقوب کی دوسری بیویاں جو تھی، وہ ہمیشہ ہی راخل کے بچوں کے ساتھ ٹکر لیتے رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ یوسف کو انہوں نے کس طرح سے عداوت کی، آگ میں جلتے ہوئے کنویں میں ڈال دیا، پھر اس کو مصریوں کے ہاتھ بیچ دیا، اور پھر بعد میں جب یوسف کے بچے ہوئے ان کا بھی حال آپ سٹڈی کریں تو آپ کو ملے گا۔ اب بنیامینیوں کی بات ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے سب نے اکٹھے ہو کے تو ان کے ساتھ جنگ کی، اور بنیامینیوں نے اتنی پٹائی کی، اتنی پھینٹی لگائی ان کو کہ بڑے ہزاروں کی تعداد سے اسرائیلیوں کو مارا، اور جب مارا تو پھر یہ روتے ہوئے بیت ایل میں گئے۔ یہ بیت ایل وہ جگہ ہے جہاں پر ان کا باپ رات گزار کے گیا تھا، اور جہاں پر وہ لیٹا اور اسے ایک سیڑھی مل گئی کہ کس طرح سے فرشتے آسمان پر جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، اور برابر اس کی سوچیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ خدا پر ڈیپینڈ کرنے والا شخص بن گیا۔ وہاں پر اس نے ایک قسم کھائی، ایک عہد کیا بیت ایل میں، کہ کہا کہ اے خدا، اگر تو مجھے پروٹیکٹ کرے، مجھے کامیاب کرے، مجھے بلیس کرے، تو میں تیرا گھر بناؤں گا اور 10واں حصہ دیا کروں گا، تیرے ساتھ لپٹا رہوں گا، میں تیری عظمت کو ہمیشہ اول درجہ دوں گا۔ اس نے کیا بھی اسی طرح سے، اور یہ برابر اپنی بھیڑوں، بکریوں سے، اونٹوں سے، ہر چیزوں سے یہ 10واں حصہ دیتا رہا، لیکن ایک ٹائم پہ آ کے بھول گیا۔ خدا نے اس کو 10 بیٹے دیے، اور خدا دیکھ رہا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ یعقوب مجھے اپنے عہد کے مطابق 10واں بیٹا میرے نام کر دے گا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ پھر خدا نے 11 بیٹے دے دیے۔ جب 11واں پیدا ہوا تو خدا انتظار کرتا ہے کہ اب یہ مجھے ایک بیٹا میرے نام کر دے گا۔ خدا قربانی نہیں چاہتا، لیکن خدا اپنا نام چاہتا ہے کہ میرے نام کی کوئی چیز ہو۔ نہیں کیا۔ پھر خدا نے 12 بیٹے دے دیے، ایک بیٹی بھی دے دی، 12 بیٹے اور ایک بیٹی، اور خدا انتظار کرتا ہے کہ اب یعقوب اعلان کر دے گا کہ میرا یہ بیٹا خداوند کے نام کا ہے، جیسے حنا نے کہا کہ میں سیمول کو تیرے گھر میں دے دوں گی اگر تو مجھے بیٹا دے دے۔ تو یہ خدا انتظار کرتا ہے،
खुदा ने जब सैमुअल दे दिया, हन्ना को बेटा दे दिया, बाद में और बेटे दिए, क्योंकि वो अपने वादे पर पूरी उतरी। लेकिन यकूब औलाद को इतना प्यार करने वाला था, चाहत वाला था, कि इसने खुदा के नाम का बेटा नहीं कोई दिया। किसी ये नहीं कहा कि मैं खुदा के नाम का ये बेटा दे दिया है, ये खुदा की खिदमत में रहेगा ना। तो उसका रिजल्ट क्या निकला कि खुदा ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि उसने यूसुफ को जबरदस्ती यकूब से ले लिया, और लेकर फिर यकूब को बड़े 7 साल रोना पड़ा, और रो रो के आंसू बहा बहा के तो आंखों से उसकी रोशनी कम हो गई, धुंधला गया, एक तरह से नबीना हो गया। ये उन लोगों को पता है जिन्हें गम पड़ता है। जब गम किसी के सर चढ़ जाए तो उसकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है। अगर किसी की मां मर गई है या किसी का कोई भाई मरा है, तो उनको पता है कि जब वो अपनी मां को याद करते हैं, या भाई को याद करते हैं, या बेटे को याद करते हैं, तो उनकी आंखों की रोशनी कम होती है। मेरा इसमें तजर्बा है। मेरे छोटे भाई की मौत हो गई, और मैं अब भी कभी रास्ते में अकेला जाते हुए उसको याद करता हूं, तो मैं पैदल चल नहीं सकता, मुझे रुकना पड़ता है। कुछ लिख रहा हूं तो मैं लिख नहीं सकता। तो ये है वो एहसास जब दूर हो जाता है, वो मोहब्बत जब दिल का टुकड़ा कटता है, तो फिर आंखों से आंसू आते हैं। सच्चाई का मुझे पता है, हमने सब ने एक दिन इस दुनिया से जाना है, लेकिन मोहब्बत, वो आवाज, वो एहसास हमें कभी भी उस तरह का माहौल नहीं देती जिस तरह से हम थे। अंदर से टूट फूट जाता है बंदा, ब्रोकन हो जाता है। इसी तरह यकूब हो गया, उसकी खुशियां जाती रही, वो टूट गया, और उसने अपने घर से अलग रहना शुरू कर दिया, अपने बेटों से अलग रहना शुरू कर दिया। गोया कि उसका रोजा हो गया, फैमिली से अलैदगी हो गई, मातम हो गया, तन्हाई हो गई, खामोश हो गया। और यही हालत जब होती है तो फिर रोजा होता है। और रोजे के बाद जब यकूब मिला है, मिस्र में गया है, तो उसकी रोशनी दोबारा से बहाल हो गई। उसकी आंखों से आंसू दूर हो गए, और आंखों की रोशनी फिर से बेदार हो गई, जाग गई, चमक गई। जब हम रोजे रखते हैं, खुदावंद के हुजूर बैठते हैं, जब यूसुफ ने अरामियों से तंग आकर खुदा के सामने रोजा रखा, उसकी कौम ने रोजा रखा, तो खुदा खड़ा हुआ उसकी मदद के लिए। रिजल्ट क्या निकला? खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा, एलियन आए, और उन्होंने उनकी आर्मी को तहस नहस करके रख दिया अरामियों की। जब हम रोजे में रहते हैं, आंसुओं में रहते हैं, गम में रहते हैं, दुख में रहते हैं, तो खुदा फिर अपनी कौम को, अपनी फौज को, अपने लोगों को, अपने फरिश्तों को भेजता है। कोई कलाम के जरिए से आपकी हिफाजत करता है, मदद करता है, कोई दुआ के जरिए से करता है, कोई गैबाना हाथ से आ जाती है पावर, और फिर सब कुछ बदल जाता है। ये रोजे की कुव्वत है, ये खाकसारी है, ये इनकसारी है। ये कहा गया है कि टाट ओढ़ना, तो जो टाट ओढ़ना होता है
उसको कहते हैं फूड़ी डालना। जैसे आप देखते हैं पंजाब में लोग दरियां बिछा देते हैं, टाट बिछा देते हैं, तपड़ियां बिछा देते हैं और लोग उन पे बैठ जाते हैं, शेव नहीं करते, नहाते नहीं हैं, और बस दाल रोटी पकती है। अब तो लोगों ने कुछ शुगल बना लिया है ना कि एक मर जाता है, बाद में बिरयानियां चल रही हैं और बाकायदा तौर पे टेंट लगते हैं और बड़ा किया जाता है। अच्छी बात है, ये भी अच्छा है, लेकिन जो जुदाई का गम है वहां पर तो खाने को जी नहीं चाहता, पानी नहीं पीने को जी चाहता। वो है असल में रोजा, जब जी ना चाहे। जैसे नहमिया की बात है, वो कहता है मैं बैठ गया और रोना शुरू कर दिया। मेरे लोगों की ये हालत है, मेरे शहर की ये हालत है कि जो फाटक हैं वो जले हुए हैं, दीवारें जली पड़ी हैं, दीवारें गिरा दी गई हैं और गलियां कवाड़े बिल्कुल उजड़ गए हैं। वो कहता है मैं रो पड़ा। जब रो पड़ा, जब दिल को हाथ पड़ गया, तो फिर ना रोजे की बात है, ना रोजे के टाइमिंग की बात है कि इस टाइम मैंने खाना है, ना 8 पहर की बात है, ना 4 पहर की बात है, ना 6 पहर की बात है, ना 1 दिन की बात है, ना 10 दिन की बात है। जब मूसा खुदावंद की हजूरी में एलोहिम के ग्रोह में बैठा है तो 40 दिन तक वहां कौन से बूफे लगे थे? जब यीशु मसीह जमीनी खिदमत को शुरू करने वाला था तो 40 दिन तक प्लानिंग ही करता रहा। यीशु को तो कोई जरूरत नहीं कि वो रोजे रखे, यीशु को तो कोई जरूरत नहीं कि वो फाके करे, यीशु को तो कोई जरूरत नहीं कि वो कुछ ना कुछ इस तरह से किसी के सामने भूख हड़ताल कर दे, वो कोई धरने पे बैठ जाए। नहीं, वो प्लानिंग में इतना बिजी था। जब हम पैदाइश की किताब पहला बाब पढ़ते हैं, उसकी पहली आयत तो लिखा है अबरानी में बराशीत 12 एलोहीम अत हाशमाइम अलपिने। पानियों के रूह पर, पानियों की सतह पर खुदा का रूह जुम्बश करता था, बिजी रहता था। जब बिजी कोई हो जाता है तो फिर उसको टाइम याद नहीं रहता। जब कोई बिजी हो जाता है तो उसको खाना याद नहीं रहता। जब कोई मसरूफ हो जाता है तो वो फिर ये नहीं देखता कि दिन कब है और रात कब है। जब कोई डिजाइन करता है, मेरा ये तजर्बा है, मैंने कईयों को देखा है, मेरा खुद भी तजर्बा है, एक डिजाइनर होते हुए, आर्किटेक्ट होते हुए मेरा ये तजर्बा है। जब मैं किसी बिल्डिंग का डिजाइन करता था तो बैठा रहता था और बनाता। मेरी बीवी को इस बात का पता है, मेरी माँ मुझे कहती थी, मेरा बाप कई दफा आके कहता था अब तो रात का 1 बज गया है, अब छोड़ दो। तो मैं कहता था नहीं, अब ये फाइल तैयार होने वाली है तो मैं इसको कंप्लीट कर लूं। मेरी बीवी ने बारहा मुझे कहा अब तो खाने का टाइम हो गया, आप छोड़ दो, ये खाना पहले खा लो। तो बस ये होता था, ये जो लाइनें रह गई हैं, ये जो डिमेंशन रह गई हैं, ये जो पर्सपेक्टिव बन रहा है, इसको मैं कंप्लीट कर लूं। कई दफा शुगर डाउन हो जाती थी, काम में इतना ज्यादा बिजी हो गया कि खाने की परवाह नहीं। तो अगर आपके पास कोई प्रोग्राम है, अगर आपके पास कोई परेशानी है, अगर आपके पास इतना कोई दुख है, आपके पास कोई इतना फिक्र है किसी काम का, अपने खानदान की फिक्र है, अपने घर की फिक्र है, अपनी औलाद की फिक्र है, अपनी कलीसिया की फिक्र है, अपने मकदसों की फिक्र है, जैसे सैमुअल कहता है, खुदा ना करे कि मैं तुम्हारे बारे में दुआ करने से बाज आऊं और गुनाहगार ठहरूं। पालूस कहता है मुझे तुम्हारे बारे में जनने के से दर्द लगे हैं। जैसे किसी ने कोई बच्चा पैदा करना होता है मां ने, तो वो दर्दों में रहती, वो कहां सो सकती है। उसको पता है उसके अंदर एक जिंदगी है और उस जिंदगी ने जन्म लेना है।
तो वो कहता है मेरे अंदर ये आग लगी हुई है। यिर्मयाह कहता है मैं तो इस आग को दबाते दबाते थक गया, तेरे कलाम को अपने अंदर रखते रखते थक गया, अब मुझसे रहा नहीं जाता। तेरा कलाम मेरे अंदर आग की मानद है। और पौलुस कहता है मैं सो ही नहीं सकता। फिर वो कहता है मैं उनकी तरह जागता रहता हूं जिनको हिसाब देना पड़ेगा। ये है रोजा। ये कब खाना को खाएगा जिसको पता है मुझे हिसाब देना है। कई लोगों को हार्ट अटैक हो गया गम की वजह से कि मुझे हिसाब देना है, मेरा हिसाब सही नहीं है, मुझे मालिक ने पूछना है नहीं तो टांग देना है। मैं कैसे ये सारे मामले को दुरुस्त करूं? जब ये पता चल जाए तो फिर जिंदगी की परवाह नहीं होती। मलका आस्तर ने क्या किया? ऐ बादशाह, अब जीऊं या मरूं, मेरी बात सुन ले। उसको पता था कि अगर अक्सवीरियस बादशाह ने उसको अपनी तरफ आने की इजाजत ना दी तो ना गई तो फिर मरना ही मरना है। लेकिन उसने अपनी कौम के लिए अपने आप को पेश कर दिया। मैं मरी तो मरी, मैं गई तो गई, मौत हुई तो हुई, लेकिन मैं अपनी कौम को बचाना। 3 दिन का रोजा आस्तर ने रखा। 21 दिन का दानियल ने रखा। वो पूछता है, फिक्रमंद है, रोज खिड़की खोलता है, रोज दरवाजा खोलता है, रोज आंखें उठाता है यरूशलेम की तरफ। मेरी कुम्मक कहां से आएगी? कौन मेरी सुनेगा? दाऊद कहता है मैं पहाड़ों की तरफ देखूंगा। सुलेमान कहता है मेरा महबूब पहाड़ों पर से कूदता हुआ आता है, मेरी मदद को कूदता हुआ आता है। क्या हमारे रूटीन के रोजे हैं, या शुगर मेले के रोजे हैं, या ईद के रोजे हैं, या दाऊद की तरह पहाड़ों की तरफ देखते हैं? मेरी कुम्मक कहां से आएगी? अखियां चुक ना मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किस नूं पुकारा? कोई है मेरी मदद के लिए? नहमिया कहता है मेरे अबाओ जदाद की कब्रें हैं वहां पर, मेरे दोस्त रहते थे वहां, मेरी बहनें रहती थी, मेरे लोग थे, उन बाजारों में मैं खेलता रहा हूं। क्या हम कभी अपने एरिया के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपनी गलियों के लिए, अपने उन छोटे छोटे बचपन के दोस्तों के लिए कभी दुआ की? क्या खुदा अब वो नशे में पड़े हुए हैं, बेरा रवि का शिकार हो गए हैं, हम किन लोगों के हाथ में आ गए हैं? हमें तू कब छुड़ाएगा? हम किस तरह से रिहा होंगे? तो मेरे अजीजों, फिर एलियन आते हैं, फिर एंजल आते हैं, फिर गैबी हाथ आता है, फिर वो अपने फरिश्तों को आके शोले बना के भेजता है, वो अपने खादमों को भेजता है और दिनों में सब कुछ बदल जाता है। इसलिए इन बातों को आम ना समझें, इस कलाम को आम ना समझें, इन दिनों को आम ना समझें। हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं लोगों को, जख्मों पर उंगली रख सकते हैं, उंगली चुभो सकते हैं, पेन बढ़ा सकते हैं, लेकिन पट्टी बांधना जरूरी है ताकि हीलिंग हो जाए, आराम हो जाए। प्यार करना, बहाल करना जरूरी है। अपनी कौम के लिए रोजा रखें, अपने लोगों के लिए रोजा रखें, अपनी औलाद के लिए रोजा रखें, अपने कारोबार के लिए रोजा रखें, अपने खिदमत के लिए रोजा रखें। और कहीं सैमुअल की तरह, कहीं दाऊद की तरह, और कहीं पालूस की तरह, और कभी नहमिया की तरह, और कभी यसाया की तरह, और कभी इतने बिजी हो जाए मसीह खुदावंद की तरह अपनी खिदमत में कि फिर नजात के दरवाजे खुलते हैं, फिर आंखों की रोशनियां बहाल हो जाती हैं, और फिर हम उसको रूबरू दे